हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the given function by using the formula when the function of s is divided by s, and by using the formula for inverse Laplace transform of the derivative of the function. Okay, so by using that we find out the value of the ft, that means the inverse Laplace transform of the given function. So today we will start with the convolution theorem. So before that, whenever we have to find out the inverse Laplace transform of some function of s plus suppose some function of another function of s. Okay, so what will be its Laplace inverse? So it will be L inverse of f, that means f of s, right, and plus L inverse of g of s, right. So it will be there. If there is minus sign, so L inverse of fs minus L inverse of gs, that will be there. So this property is actually known as the linearity property of the inverse Laplace transform. Okay, so whenever there is a addition of the two functions of s or more functions, or there is subtraction of the functions of s, then you can find out the L inverse. But if there is product of the functions of s, then how to find out the L inverse fs into gs? So one method in the previous videos we have already discussed, that we can use the partial fraction. Okay, but if you don't want to apply the partial fraction, or sometimes it's hard to evaluate the L inverse by using the partial fraction, then there is another method to solve that, is the convolution theorem. Okay, what it says that if you know the, if you have to find out the L inverse of fs into gs, okay, that means if there is a product of the functions and you have to find out its L inverse, so before that you should know what is the L inverse of fs and what is the L inverse of gs. इससे पहले ये पता होना चाहिए. तो if you know that L inverse of fs, suppose it is ft, and L inverse of gs, say it is small gt, then what will be the L inverse of fs into gs? That will be given by integral 0 to t, जो एफ एस का एफ टी आया था, इस टी की जगह हम क्या यूज कर दें, यू, सपोज इट इज एफ यू एंड जी ऑफ, जो ये जी आया आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी एस, इस जी की जगह टी, इस जी में टी की जगह हम क्या लिख देंगे, टी माइनस यू डी यू. ओके, so this is known as the L inverse of the product of the two functions of s. Okay, this can also be written like this. It also will be equal to 0 to t. मान लीजिए g में तो मैं क्या यूज करता हूँ, t की जगह u, और f में मैं यूज कर देता हूँ t की जगह t माइनस यू डी यू. ओके, और u की जगह कुछ और वेरिएबल यूज करना चाहते हो, यू कैन डू इट बाय योर ओन. if you want to say 0 to t, and if you want to say it is gz, f of t minus z dz, right. So it's your choice to do. Now we will discuss the proof, how to do it. So I suppose, first of all, I suppose the right hand function is some function of t. Obviously you know that when you do this integration, so जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद you have to apply the limit 0 to t. So when you apply the limit, u की जगह लिमिट अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो जो फंक्शन आएगा सोल्व करने के बाद, दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ t. ओके, तो इसलिए हमने उसे सोल्व क्या सपोज किया है, फाई ऑफ टी. सो राइट हैंड फंक्शन आई सपोज दिस इज फाई ऑफ टी. इफ आई टेक द Laplace of phi t, that means that will be the Laplace of this one. Okay, so what will be the Laplace of this one? Just apply the definition for Laplace. So what is the definition? 0 to infinity e raised to power minus st into ft, लेकिन ft इस टाइम में क्या है आपका, ये है ft. ओके, सो 0 to st into ft dt, राइट. और यू कैन राइट इट एज 0 to infinity, दोनों इंटीग्रल को अगर मैं लिखता हूँ
It can also be written like this, 0 to infinity into 0 to t e raised to power minus st fu g of t minus u d u dt, राइट। तो हमारे पास जो t है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो t की लिमिट आपकी है 0 से इन्फिनिटी, और u की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u इक्वल टू 0 से लेकर u इक्वल टू t तक, राइट, ये लिमिट है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज करना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स पहले आपका u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू कैन सी दैट, ओके। बट व्हाट आई वांट टू डू, मैं चाहता हूँ कि पहले हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर उसके बाद u के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेशन। तो u की लिमिट आप बार वाले पे लगाओगे, ओके। अभी लिमिट क्या है आपकी, यू कैन ऑब्जर्व हियर, अभी लिमिट क्या है, t, जो बाहर वाली लिमिट है, t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके। एंड सेकेंड लिमिट आपकी क्या है, ये u की लिमिट है, तो u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू t, ओके। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस, यू नो दैट ये हमारे पास दो रीजन है। सो इफ यू फाइंड आउट व्हाट ड्रॉ द ग्राफ, सो व्हाट इट विल बी, suppose that I am taking t to the real axis and u to the this vertical axis. So what is horizontal axis t ले लिया, vertical axis u. So draw the graph. t कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ओके। तो t आपका 0 इधर है और प्लस इन्फिनिटी इधर राइट हैंड साइड में, ओके। सो इट विल बी दिस टू द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, पूरा द राइट हाफ प्लेन, राइट। एंड u क्या है आपका, 0 टू t, तो u आपका 0 कहाँ पर है, इस एक्सिस पर पूरी पे 0 है, लेफ्ट और राइट पर सभी पे। एंड u इक्वल टू t कहाँ पर है, u इक्वल टू t इज दिस लाइन, ओके। तो अगर आप राइट ऑफ प्लेन एंड जो u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू t, जो ये रीजन है, इन दोनों का अगर मैं कॉमन रीजन देखता हूँ, व्हाट विल बी द कॉमन रीजन, सो यू विल से दैट कॉमन रीजन इसका क्या होगा, दैट विल बी द कॉमन रीजन, दिस वन, दैट विल बी कॉमन रीजन, ओके। तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पर आपको दिख गया कि u इक्वल टू 0 से लेकर u इक्वल टू t, u इक्वल टू t ये है, ये लाइन, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू 0 से t टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस साइड पर। अब हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, और लिमिट चेंज को क्या कर रहे हैं, अभी आपने एक तरह से लिमिट लिया, आपने ये आप कह सकते हो वर्टिकल स्ट्रिप लिए। वर्टिकल स्ट्रिप में अगर हम देखें तो u 0 आपका नीचे क्या है, इस वर्टिकल स्ट्रिप पे u इक्वल टू 0, और कहाँ से बाउंड हो रही है ऊपर, u इक्वल टू t पर, तो ये लिमिट ये है। तो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप की बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूँ, सो आपकी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यू कैन सी ऑब्जर्व हियर। सो व्हाट आई डू हियर, जैसे हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, दिस इज टू द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज t हॉरिजॉन्टल एक्सिस, u वर्टिकल एक्सिस, तो u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू t थी देखिए आपकी, एंड t इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस साइड पर है, ओके। ये लिमिट थी, तो उस लिमिट को हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये लिमिट से हमने चेंज किया, चेंजिंग लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं लेता हूँ, तो ग्राफ तो यही है आपका। तो ये जो ग्राफ है इसमें केवल मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। अब वर्टिकल स्ट्रिप में देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक का रीजन है हमारा, t इक्वल टू u से लेकर, वर्टिकल स्ट्रिप क्या लोगे आप, किसकी लिमिट लोगे, t की। सो t इक्वल टू u से लेकर t कहाँ तक जा रहा है, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट, t इक्वल टू u टू t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो एक तो ये लिमिट हो जाएगी t की, और u की लिमिट क्या है, u आपका पूरा है u इक्वल टू 0 से लेकर u इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा रीजन है। तो u इक्वल टू 0 टू u टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि इस रीजन में लेना हमने, राइट। सो व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको कंबाइन करके आप इस तरीके से भी कह सकते हो जैसे मिडल में शो किया गया, इसी में हमने वर्टिकल दिखा दी है और इसी में हमने ओरिजेंटल भी दिखा दिया, राइट। तो कंबाइन करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, सो यू विल राइट डाउन हियर, पहले अंदर हमारा t के रिस्पेक्ट में था, लेकिन अब अंदर हमारे u के रिस्पेक्ट में था डेरिवेटिव, और सॉरी इंटीग्रेशन, उसको हमने कर दिया t के रिस्पेक्ट में,
ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। लेकिन टी की लिमिट क्या है, ये टी है ना, तो टी की लिमिट मेरी क्या है, टी की लिमिट है टी इक्वल टू यू टू टी इक्वल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये रहा टी इक्वल टू यू टू टी। फिर आउटर लिमिट हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं यू के रिस्पेक्ट में, और यू की लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी, तो ये आउटर हो गया, और इसकी लिमिट हो गई आपकी जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। दिस इज जीरो, दिस इज जी। सो दिस वाज द मेन स्टेप एक्चुअली। इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, देन यू विल गेट द आंसर। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, you can see over here, this can also be written as this one, the same point is there. So what I do here is e raised to power minus st, तो इसको अगर मैं ओपन करता है e raised to power minus st प्लस su, ये आएगा। या फिर इसे मैं e की पावर में है, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ e raised to power minus st इंटू e raised to power su, राइट। और यू कैन से दैट कि हमारे पास केवल क्या था, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी था। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ई रेस्ट पावर माइनस एस टी था, जस्ट आई एम एडिंग ई रेस्ट पावर एस टी में आप एस यू ऐड और एस यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो ये टर्म है इसको मैं इंडिविजुअल करके लिखा है यहाँ पर, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी प्लस एस यू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एस यू, राइट। तो हमने यहाँ पर ये टर्म लिखी है, जस्ट adding and subtracting SU in the power of E. So what will be there, हमने क्या करना है, पहले t के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ तो जो u की टर्म्स है वो कांस्टेंट है, तो ये जो u की टर्म है इसे बाहर निकाल लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। सो यू टेकन इट आउटसाइड, सो ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया u टू इन्फिनिटी दिस वन, ओके। सो अगर मेरा यहाँ पर कोई एक वेरिएबल होता, मान लीजिए ई रेस्ट पावर माइनस एस टी और जी टी डी टी होता, तब हम डायरेक्ट कह देते दैट इज द डेफिनेशन फॉर द लाप्लास, राइट। सो अगर मैं इस टी माइनस यू को कुछ एक वेरिएबल यूज कर देता हूँ, सो आई एम डूइंग हियर टी माइनस यू को मैंने क्या यूज कर दिया, सपोज वी। अगर टी माइनस यू को वी यूज किया है तो डी टी क्या होगा, डी टी माइनस जी विल बी इक्वल टू डी वी, ओके। अगर मैं यहाँ पर टी को यू पुट करता हूँ इसमें, इस लिमिट में अगर मैं टी को u पुट करता हूँ तो आप कहोगे v क्या आ जाएगा आपका जीरो, और t टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो v टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट हमारी क्या बन गई v में, जीरो से इन्फिनिटी, राइट। सो यू हैव दिस लिमिट इज सॉरी दैट विल बी आपका dt की जगह क्या आ गया, dv। t माइनस यू को मैंने v यूज किया तो दिस इज जी वी एंड ई रेस्ट पावर माइनस एस वी, और लिमिट क्या बन गई थी, टी जीरो टू इन्फिनिटी, राइट, डी वी। और ये डी यू और ये बाकी टर्म्स एज इट इज आपकी, राइट। सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, you just see this one, what is this, this is the definition for the Laplace. So it is the Laplace of what, g, okay. So Laplace of g को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए लाप्लास इनवर्स, आपको पता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस क्या है आपका, स्मॉल जी टी। और यू कैन से दैट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ जी टी क्या है आपका, कैपिटल जी एस, राइट। सो जो ये टर्म है ये क्या है, दिस इज लाप्लास ऑफ स्मॉल जी टी, और जी वी या जी, यहाँ पर आप टी चेंज कर दो, रीनेम कर दो इसका, या फिर वी का वी रहने दो। सो ये क्या है, लाप्लास ऑफ स्मॉल जी, वो क्या है, कैपिटल जी एस। सो वी राइट डाउन दिस इज जी एस, दिस इज दिस वन, और जो रिमेनिंग टर्म है दैट विल बी एज इट इज। सो नाउ व्हेन यू ओपन दिस इंटीग्रल, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ यू क्या है आपका, जी एस। सो जी एस को टेकन आउटसाइड एंड यू हैव लेफ्ट विद दिस वन। सो व्हाट इज दिस वन, दिस इज अगेन द डेफिनेशन फॉर, दिस इज यू नहीं है यहाँ पर, ये जीरो है नीचे की तरफ। तो यू आपका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई रेस्ट पावर माइनस एस यू एफ यू जीरो टू इन्फिनिटी। सो दिस इज अगेन द लाप्लास ऑफ एफ, और लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ क्या है, कैपिटल एफ एस, राइट। सो नाउ दिस इज एफ एस एंड दिस इज इंटू जी एस, सो एफ एस इंटू जी एस यू गॉट। तो लाप्लास ऑफ जी फाई टी हमने निकाला तो वो क्या आ गया, एफ एस इंटू जी एस। तो अगर मैं लाप्लास इनवर्स लेता हूँ इसका तो वो क्या आ जाएगा, फाई टी, ओके। सो यू से दैट
यहाँ से आप कहोगे लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी फाइव टी। लेकिन फाइव टी हमने किससे सपोज किया, तो जो राइट हैंड साइड में फंक्शन था। सो हमने ये कहा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू फाइव टी, और फाइव टी हमने इसे सपोज किया था, राइट। सो इन दिस वे वी विल गेट दिस वन। ओके, दैट वाज द प्रूफ। सो यू रिमेंबर दैट व्हेन यू हैव टू अप्लाई दैट कन्वोल्यूशन थ्योरम, जब भी आपके दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं और अगर प्रोडक्ट का आपने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो यू राइट डाउन दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप 0 to t एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू क्या है, एल इनवर्स ऑफ एफ एस। तो जो एफ टी आएगा वहाँ टी की जगह यू पुट कर दो, और जो एल इनवर्स ऑफ जी एस आया था जी टी, वहाँ टी की जगह टी माइनस यू पुट कर दो जी में। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लो। ये इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, राइट। इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई दैट convolution theorem. Now let us see that with the help of the example. यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि एफ बार स्टार जी बार अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसका मीनिंग यही है, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, राइट। तो उसको भी हम कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो इसका भी मीनिंग यही है हमारा, 0 to t एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, राइट। सेकंड तो हम देख ही चुके हैं, चाहे तो पहले एफ में टी की जगह यू पुट कर लो और जी में टी की जगह टी माइनस यू, या फिर जी में पहले टी की जगह यू पुट कर दो और एफ ऑफ टी में टी की जगह टी माइनस यू पुट कर लो। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ वी सी हाउ टू अप्लाई दैट कन्वोल्यूशन थ्योरम इन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लुक एट, you have to apply the convolution theorem to evaluate this L inverse of this one. So this one you have to find out. L inverse of this can be written as product of the two function, लिख लेते हैं हम। इसे लिखा जा सकता है तो फंक्शन के प्रोडक्ट में, yes it can be written. So that will be written s upon s square plus a square into 1 upon s square plus a square, right. लेकिन आपने इस तरीके से दो प्रोडक्ट में लिखना है ताकि अलग अलग उनका L इनवर्स फाइंड आउट किया जा सके, राइट। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एल इनवर्स आपको पता है, ये क्या होता है, कोस ऑफ ए टी का डायरेक्ट फार्मूला है, राइट। इस कोस ए टी को हमने बोल दिया एफ ऑफ टी, एंड इसका लाप्लास इनवर्स अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, इससे सपोज जी एस कह दो, ये एफ एस है और ये जी एस है, तो जी एस का लाप्लास इनवर्स क्या है आपका, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा एल इनवर्स ऑफ दिस थिंग, क्या है ये, साइन ए टी, तो 1/a साइन ए टी, राइट। नाउ इसे कह देते हैं जी टी। तो आपके पास एफ टी भी आ गया, जी टी भी आ गया। तब हमें एल इनवर्स किसका निकालना है, इन दोनों के प्रोडक्ट का एल इनवर्स क्या होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का चाहिए, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू इसे क्या बोले जी एस, तो एफ एस इंटू जी एस चाहिए हमें, ओके। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, डू इट हियर, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, दैट मीन्स एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ यू, जो एफ ऑफ टी आया था वहाँ पे टी की जगह यू पुट कीजिए। देखिए एफ ऑफ टी आपका क्या आया था, एफ ऑफ टी था आपका कोस ए टी, तो जहाँ पर टी है वहाँ की जगह यू यूज कर दीजिए, सो कोस ए यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, तो जहाँ पर जी ऑफ टी है, जी ऑफ टी ये है, तो जहाँ पर टी है टी की जगह टी माइनस यू पुट करेंगे, दैट विल 1 अपॉन ए साइन ऑफ ए इंटू टी माइनस यू, तो साइन ऑफ ए इंटू टी माइनस यू 1 अपॉन ए हमने बाहर दे लिया, ओके, इंटू डी यू, और लिमिट क्या है 0 to t। तब आपने क्या करना है, बस ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का बन चुका है। सो जस्ट डू द इंटीग्रेशन एंड अप्लाई द लिमिट। यू नो दैट हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन, कोस इंटू साइन, कोस एक्स इंटू साइन है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सम में चेंज कर देते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, सो डिवाइड बाय 2 आउटसाइड एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 कोस ए साइन बी, सो यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला टू कोस ए साइन बी। व्हाट वाज द फॉर्मूला, टू कोस ए साइन बी, कोस के एंगल को ए बोल रहा हूँ, साइन के एंगल को बी बोल रहा हूँ मैं, सो दैट वाज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ओके। सो यहाँ पर ए आपका क्या है, ये रहा ए, और बी आपका क्या है, ये रही बी। तो देख लीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी कीजिए, साइन ऑफ ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू, तो साइन ऑफ ए टी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2au माइनस ए टी, ओके। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस फार्मूला, अब ये आपका किस में चेंज हो चुका है, सम में चेंज हो चुका है। अब सम में करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, सो डू इट,
सो व्हेन यू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 80 विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा u, तो u साइन 80। जब साइन 2au माइनस 80 का करोगे दैट विल बी माइनस कोस 2au माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2a, सो माइनस माइनस प्लस दैट विल बी देयर। लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट, so apply the limit, upper limit minus lower limit, so after solving you will get this one, so this is your answer. In this way you have to apply the convolution theorem to solve the questions of the inverse Laplace transform, right? So अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो L इनवर्स आया है आपका, L इनवर्स ऑफ व्हाट, that is L इनवर्स ऑफ S अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, नीचे आपका है होल स्क्वायर। इसका अगर एल इनवर्स निकाला हमारे पास ये आ गया 1/2a t इंटू साइन 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब है। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन को भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिख दूं, राइट, क्योंकि मुझे एल इनवर्स ये निकालना है, तो एल इनवर्स अगर मैं इस फंक्शन को दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट में मैं इस तरीके से लिखूंगा ताकि इन अलग अलग का एल इनवर्स मुझे पता हो। तो अलग से मुझे इसका एल इनवर्स पता होना चाहिए और अलग से इसका एल इनवर्स पता होना चाहिए। सेकंड वाला फंक्शन तो क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए एंड डिवाइड कीजिए, राइट। सो वो तो मेरा डायरेक्ट मिल जाएगा, एल इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80 होता है, तो 1 अपॉन साइन 80 आ जाएगा इसका। तो लेकिन यहाँ पर एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अभी हमने ऊपर देखा है, दिस इज देयर, राइट। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन सोल्व किया है, तो कहने का मीनिंग है जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो पहले आपको ये चीज़ सोल्व करनी पड़ेगी। जब ये वैल्यू आपकी निकल कर यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगी, फिर उसे आप एफ टी कह देना और इसे आप जी टी कह देना। ओके, तो अभी तक के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें इसका लाप्लास इनवर्स ऊपर वाले क्वेश्चन से पता चल चुका है, या वो हमने काम कर लिया है। हमारे पास आ गया 1/2a t साइन 80। ओके, तो इसको हम बोल देंगे एफ टी, राइट, इसे एफ टी बोल दीजिए। और इसका क्या आएगा 1/s, इसका तो क्या आएगा 1/a साइन 80, उसको हम जी टी बोल देंगे। सो इन दिस वे वी आर डूइंग, तो हमने यही काम किया यहाँ पर। लाप्लास इनवर्स एफ एस, दैट मीन लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन से हमें मिल गया 1/2a t साइन 80, इसे एफ टी बोल दिया। लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस ये है, इसे क्या करो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किसका बना, एल इनवर्स ऑफ दिस थिंग क्या है साइन 80, तो 1/a साइन 80 इसे जी टी बोल देते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर मैं प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स निकाल रहा हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 0 to t एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू। लेकिन एफ यू क्या है, इसमें टी की जगह यू पुट कीजिए, 1/2a यू इंटू साइन ए यू, ये रहा। एंड जी ऑफ टी माइनस यू क्या आएगा 1/a साइन ऑफ ए इंटू टी माइनस यू, तो ये रहा। ओके, डी यू। अब क्या करना है, बस ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का बन गया, इंटीग्रेशन यू हैव टू डू। सो व्हेन यू डू द इंटीग्रेशन यू कैन सी 1/2a square, just when you do it, it will be taken outside this constant term, तो sin au, u sin au and sin t minus au। सो हमने क्या किया, 2 से मल्टीपल है 2 से डिवाइड, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, पहले इसे एडिशन में चेंज कर देते हैं। सो व्हाट आई डू हियर, 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड किया, तो बाहर आपका 1/4a स्क्वायर हो गया और ये 2 रहा। इसका फॉर्मूला फिर आपको पता है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, टू साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी क्या हुआ, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ये आपको पता है। ओके, बाय द ट्रिग्नोमेट्री यू नो दैट फार्मूला, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ओके, सो दैट फार्मूला वी आर अप्लाइंग हियर। तो a आपका ये रहा और b आपका ये रहा, तो देखिए हमने किया cos ऑफ a माइनस बी क्या, तो 2au माइनस 80 आ जाएगा, माइनस cos ऑफ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो cos 80, राइट। नाउ u से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी दिस वन, और इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, दैट विल बी दिस वन माइनस दिस वन। इंटीग्रेशन आप लोगों को सोल्व करना आता है, व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर द टू फंक्शंस ऑफ u इंटू cos au 2au माइनस 80, so what you have to do, integration by parts, first function as t integration second minus integration of derivative of first integration of second, okay,
फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करके हमारा ये सोल्व करके आ गया और लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0 to t। -1/4 स्क्वायर, सेकंड में हमने क्या करना है, cos ct तो कांस्टेंट है, तो u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, u²/2, लिमिट 0 to t। ओके, अगर आपको नहीं भी समझ में तो इसे दोबारा अपने नोटबुक लीजिए और जस्ट ट्राई टू सोल्व इट, देन यू विल गेट दैट आंसर आफ्टर द इंटीग्रेशन। ओके, so after applying the limit, upper limit minus lower limit, you will get this thing. Just what you have to do, just arrange the terms. Okay, so when you collect the terms, same terms, so you will get t sin at minus at square cos at 1/8 a cube. So t can be taken outside, that will be the answer. In this way you have to find out the inverse Laplace transform of the given function by using convolution. Next question is the exact same. L inverse of 1 upon s plus 1 into s plus 9 whole square. Here you can easily observe that can also be written as a product of the two functions. L inverse of this thing you have to find out. ये आपको निकालना है. So what I do here, I will say that will be L inverse of 1 upon s plus 1 into 1 upon s plus 9 स्क्वायर. इसे fs कॉल कर दो, आप इसे gs कॉल कर दो. ओके, आपको पता है L इनवर्स ऑफ fs, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 क्या होता है, e रेस्ट पावर माइनस टी, ये लिखा भी हुआ यहाँ पर, लेकिन इसे मैं क्या कॉल कर देता हूँ ft. ओके, और जो आपका L इनवर्स ऑफ जो सेकंड फंक्शन क्या है उसे gs बोल दो आप. ये सेकंड फंक्शन gs है आपका 1 अपॉन s प्लस 9 स्क्वायर. और आपको पता है L इनवर्स का तरीका, इसे s सोचो फिलहाल के लिए, ये डिवाइड में आपका s स्क्वायर है, तो 1 अपॉन s स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी L इनवर्स क्या होता है आपका, दैट विल बी t अपॉन 1 फैक्टोरियल. ओके, t अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है. अब इनटू में s की जगह s प्लस 9 है तो इनटू में e रेस्ट पावर माइनस 9t. ओके, तो e रेस्ट पावर माइनस 9t इंटू टी, तो ये क्या बन गया मेरा gt. ओके, तो अब हमने क्या करना है, जब हम ये कन्वोल्यूशन थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे तो 0 to t f ऑफ t देखो ये रहा, f ऑफ u क्या हो जाएगा आपका, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो ये देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम हम इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, g पर तो मैं u अप्लाई कर रहा हूँ और f पर t माइनस यू अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी वे से अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैं इसमें t u अप्लाई करता हूँ g में, तो ये आ गया u इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 9u, यहाँ से ये आएगा, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से ये क्या आएगा आपका g ऑफ u, u इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 9u, ये रहा आपका. ओके, और f ऑफ t में f ऑफ t की जगह u पुट करता हो तो क्या आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस टी माइनस यू. f ऑफ t माइनस यू निकालना है तो ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ t माइनस यू, राइट. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग वी गेट दिस वन. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, इंटीग्रेशन करना है हमें, तो जस्ट ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है अब आपका. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू हैव टू टेक. सो कलेक्ट कर लीजिए जस्ट टर्म. सो आफ्टर कलेक्टिंग द टर्म्स इट विल बी u इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 8u, और ई रेस्ट पावर माइनस टी को सेपरेट लिख दिया हमने, बिकॉज ई रेस्ट पावर माइनस टी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसे तो बाद आइए, बस जो अंदर है आपका u इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 8u. तो हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो क्या लगाना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, दूसरे को सेकेंड, राइट. सो u इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड जो ई रेस्ट पावर माइनस टी है इसे सेकेंड फंक्शन. ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर मैं इंटीग्रेशन सोल्व करता हूँ, यू विल गेट दिस वन. फर्स्ट वन है टी इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड एंड अगेन इंटीग्रेशन, राइट. सो इट विल बी दिस वन. अप्लाई द लिमिट, when apply the limit, upper limit minus lower limit, you will get this one. After just simplifying we are getting this one. So in this way you can find out the L inverse of the given function. Okay, so I am giving you some questions on the basis of the convolution theorem. You just try it by your own. If you are having some problem, then ask me. So the next topic we will discuss in the next class. There are the answers. If you are solving this L inverse of the given functions, you can cross check the answers over there, right. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.